idea of human nature, and that I think is very paradigmatic. The modern Western idea of human nature is very lopsided. It either says human beings are good or it says human beings are bad. Indian tradition has a very rich understanding of human nature that is in the form of what is called Purusharth and Vikar. Gandhi used it to understand. Gandhi went to his lawyer, his boss, as a junior, and his boss asked him, how do you understand human nature? And Gandhi repeated the Western idea, modern Western idea. He said, no, this is not human nature. You go and learn again. And then Gandhi developed a full reading list to understand what is human nature. And he discovered this idea of Purusharth, and that is what he used for his understanding of politics and everything. Now, till now, we thought Purusharth is a value category. Value category means what should be done? We should try to achieve Purusharth. Now I see a very clear trend of writing which treats Purusharth as an analytical category, which means treating human being as a complex being. They are good and bad depending on priority of these 4 Purusharth and 6 Vikara, Arth, Kam, Dharma. Relation is capitalism. Other form of relation is what Gandhi suggests. Nature has enough for need but not for greed. Capitalism is based on the idea of the greed. The organizing principle of capitalism is greed. Adam Smith, if you read, Adam Smith mentions a poem, a very long poem, which was titled as Greed is Good, because greed makes you work and you can produce more. Once you produce more, then you have more resource to distribute. So common good is there. Now people are saying 2008 economic crisis, most of the reports suggested that the real problem is the greed, but there is no philosophy which can suggest that human beings should not be greedy. I think Purusharth suggests that greed is also part of us, lobby is part of us, but that is not all. We are not only lobby, we are also very generous. So Arth is that. Kam is not about sexuality. Kam is about the desire produced by the biological body. A lot of desires, psychological desires is also part of desire. So that also keeps changing. I'll come to that. And then third is Dharma. Dharma is not about religion. It is about laws of nature on the basis of which we make certain morality principles, social principles and all that. And moksha is being conscious of consciousness, rising to the level where you become a sthit pragya. Now if you can manage these 4, then the 6 vikars you can control, you can manage, and all 10 makes your personality, which keeps changing. It's a dynamic personality. There are 2 more factors, time and space. In different times your personality will become different. In different space your personality can become different. So this dynamic understanding of human nature, can that be made as the basis of understanding of our society? That is a challenge I think now people are facing. I just quote, Rajiv Bhargava wrote a book called Methodological Individualism. Very powerful book where he argued that the Western understanding of individual is problematic as it is lopsided. I asked him, where is your next book which suggests that human nature is more complex and more dynamic? He said, I did not write it. I said, why you didn't write it? He said, I didn't have the confidence to write that. That confidence I think now our generation is gaining. A new generation is gaining. We can't anymore say that we are not confident. We are confident enough to bring these things on the table and argue for it. There is no sense of humiliation. For instance, if you look at the books on Indian philosophy, read their introduction. Invariably, they are making one simple point. That is, we also have philosophy. The entire generation was wasted only in making one point to the West, that we also have philosophy. What a disaster. Instead of getting into your own philosophy, philosophizing in your own way, there was a conference in IIC. The title was very interesting. Rendering Indian philosophy in English language. So I said, what is this project that you have?
Instead of philosophizing, you are rendering philosophy in English language. That was the project of the previous generation. So I think the new generation is no more doing it. New books on Indian philosophy, I think they are very bold. Like if you read Jonardon Ganeri, very bold. He says that we need to decontextualize philosophy and recontextualize that. So a lot of interesting books are coming. Sir, could you please comment on the debate between Indian political theory and political theory from India? Okay. As I said, and that question was raised by our guest speaker during welcome address. Right. See, as I said, we have been debating about this. When we say Indian political theory in India, that means that there is a universal political theory somewhere, and we are trying to copy that theory in our own way or contribute to that theory. That is political theory in India. When we say political theory of India, that means we have certain foundations on the basis of which we are creating a political theory. I think this second project is a very, very important project. And a lot of people argue that during the freedom struggle, these thinkers were trying to create political theory of India, the project that has been abandoned. I think that there is a kind of, there is no need to see them as either or. I think when we say political theory of India, of course we are trying to create something from India. When we say political theory in India, that means we are engaging in the dialogue with the West. And at this moment, engaging in dialogue with the West is very important. But they have a very rich tradition. Let's acknowledge that. They have spent huge amount of energy and resources on theorizing the entire world. So they have certain universal. Our task now is to challenge those universals, not to abandon universal, but to reconstitute the universal from our own point of view. So we are contesting the universal and constantly suggesting that universal is re-emerging. So maybe tomorrow the Adivasi community will reassert, and they have some resources to articulate their ideas much better than what they are doing now, and they will challenge this universal, and they will also, they have right to create the universal once again. So the universal should be constantly emerging. That allows us to have a dialogue. I think one of the philosophical traditions that gives this resource to us in India is Anekantavada. Anekantavada, those of you who know, Gandhi used to call himself Anekantavadi. This was a philosophy, Jain philosophy emerged in the 6th century BC to mitigate the conflict between philosophical traditions. And it says that all of us know only partial truth, and we have to constantly struggle for more and more truth. So the famous story of 6 blind men and an elephant is that only, that the totality has to be understood, and constant struggle is that. So all of us have very partial view of things. Therefore, when we say of India and in India, should not be seen as either or, should be seen a dialogue with international or global philosophical trends. Sorry, should we take one from there and then come to you? Yes. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेमिनार। सर मेरा सवाल एक एकेडमिक डिस्कोर्स को लेकर के था। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी को ट्रेस करते हैं तो हम मनु से निकलते हैं और फिर हम लोहिया तक समाप्त करते हैं। इस दरमियान कुछ ब्रेक्स आते हैं, जैसे अम्बेडकर आते हैं और भी बहुत से लोग आते हैं। मगर जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है भारत में क्या हुआ है कि हमने उन जितने थ्योरीज थे उनको भगवान का रूप दे दिया। वी हैव मेड देम अ कल्ट फिगर। उस चक्कर में क्या होता है मेरे हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन में, कि हम अक्सर उनको या तो क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं या फिर हम उन्हें केवल पॉलिटिकल ढांचे में ढाल देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं अम्बेडकर की बात करूंगा तो संभवतः वो केवल दलित चेतना के इर्द गिर्द रह के घूमते रह गए। उसके बाद यही लोहिया के साथ भी हुआ है और अभी एक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में क्राइसिस दिखती है। लोहिया के बाद मुझे कोई ऐसा थिंकर दिखता नहीं है जो इंडियन डिस्कोर्स को डोमिनेट कर पाए। अब लोहिया भी केवल नीतीश कुमार के 2015 तक के दौर में ही बचे हैं, वो भी खत्म है। तो क्या एक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में हमें एक रीएवोल्यूशन की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि अभी तक हम लोग जो चर्निंग हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान, उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकाल पाए हैं।
जब भी हम लोहिया की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, तो हम उसके हिस्टोरिकल लोकेशन की बात करने लगते हैं, जबकि हमें जो आइडियाज़ का कंटेंट है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जैसे आप देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी आइडिया वहाँ जनरेट हुआ उसको बहुत जल्दी उसका थ्योरीज निकल के बाहर आ गया, थ्योरी के रूप में एग्जिस्ट करने लगा। हमारे यहाँ जो संघर्ष हुआ वो अभी तक हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये है कि हमारा जो कॉलोनियल डिसरप्शन था कॉग्निशन में, वो हमें बार बार उसी कॉलोनियल के पीछे लगा के रखता है, उसी कॉन्टेक्स्ट के पार लेके चला जाता है। मैंने जो जोनार्डन गनेरी का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को अप्रोच करना चाहते हैं तो पहला काम ये कीजिए कि उनको वहाँ से डीकॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। यानी कि यदि अम्बेडकर और गांधी का डिबेट पढ़ना है तो हम ऐसे नहीं पढ़ें कि वो दोनों झगड़ रहे थे आपस में, हम ये देखें कि क्या कंटेंट पे उनका डिबेट चल रहा है, उस कंटेंट पे फिर हम कुछ नया कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये जो ऑरिजिन पे जाने का प्रॉब्लम हमारा है, उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो इंडियन फिलॉसफी पे किताबें आप देखेंगे, डी.पी. चट्टोपाध्याय की किताब है व्हाट इज़ डेड व्हाट इज़ अलाइव इन इंडियन फिलॉसफी। अब उनका प्रॉब्लम क्या है कि बार बार वो इसी बात पे जाते हैं कि फ़िलॉसफी का ओरिजिन किस क्लास कॉन्टेक्स्ट में हुआ होगा। ये तो बड़ा ऑब्सेशन है ओरिजिन के बाद। मैं इसे कहता हूँ जर्मन आइडियोलॉजी सिंड्रोम, कि हर चीज़ का ओरिजिन ढूंढने में आप चले जाते हैं। अभी उससे बाहर निकल के ये देखेंगे उसका कंटेंट क्या है, वो कंटेंट हमारे लिए एक्सप्लेनेटरी कैपेसिटी उस कंटेंट में है भी या नहीं है। जैसे मैंने पुरुषार्थ और विकार की बात की, तो उसका एक्सप्लेनेटरी कैपेसिटी हमें देखने की ज़रूरत है। या एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आजकल यूज़ करता हूँ सोशल साइंस में, वो है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। बहुत पावरफुल टेक्निक है डिबेट का। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप हमारा विरोधी, हम आपका आर्ग्यू कर रहे हैं आपके साथ, बल्कि पूरा एक उसका नॉर्म है। जब आपने किसी को अपना पूर्व पक्ष बनाया तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसकी बात को 100% आप समझें, फिर आप उसके बारे में बात करें। और ऐसा नहीं कि उसको विरोधी मान रहे हैं, आप उसका इमिनेंट क्रिटिक करते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आप अप्रोप्रिएट करते हैं, जो वीकनेस उसको एक्सपोज करते हैं, और फिर नया थियरी आप क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम रिड्यूस कर देते हैं इस बात पे कि ये ब्राह्मणिकल फिलॉसफी था, या ये दलित फिलॉसफी था, या ये गांधी जो थे वो बुर्जुआ थिंकर थे, वगैरह वगैरह करके, तो हम वहाँ खो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, बिल्कुल आपने सही कहा, इस नए चर्निंग में मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही होगी हम उन चीज़ों को डीकॉन्टेक्चुअलाइज कर सकें और फिर हम रिकॉन्टेक्चुअलाइज करें। फिर हम देखेंगे आज वो चीज़ें कैसे हमें एक्सप्लेन कर रही हैं, उनका एक्सप्लेनेटरी कैपेसिटी है भी या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दें, है तो फिर लेके आगे चलें। सर जस्ट कमिंग सर, एक सेकंड, एक और लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपकी जो एक लाइन थी कि पॉलिटिकल थ्योरी इन इंडिया और पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंडिया, इट रियली फैसिनेटेड मी अ लॉट। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मैं भी हूँ। सर एक चीज़ आपने अपनी पूरी बात के अंदर बोली थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपनी चीज़ों को आगे रखते हैं। सर एज ए स्टूडेंट मेरे साथ हमेशा से एक दुविधा सामने आई है कि जब मैं इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी या कुछ भी इंडिया के रिलेटिव पढ़ना चाहता हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आता है वो होते हैं यूरोपियंस, वो होते हैं बाहर के लोग जिन्होंने हमारे अंदर आकर के हमको चीज़ें बताई। सर एक छोटा सा उदाहरण है, 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी आती है हमारे इंडिया के अंदर और 40 साल तक वो काम करती है और उसमें एक भी इंडियन नहीं रहता, और फिर वो हमको वो चीज़ें ला करके देते हैं जो हमारे पास थी। मतलब ग्रंथ हमारे, टेक्स्ट हमारे, चीज़ें हमारी इंटरप्रेट वो कर रहे हैं, एक भी इंडियन नहीं है, और फिर उसको हम पर थोप दिया जाता है। एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ूंगा, मैं अपने रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर के जाता हूँ तो वो उसको माइथोलॉजी बोल करके साइड कर देते हैं। जब मैं उनसे रेशनलिज्म की बात करता हूँ तो वो कहते हैं आपकी सिविलाइजेशन थी बट वो रेशनल नहीं थी। जब मैं उनसे कहता हूँ हमारे पास न्याय दर्शन था जिसमें प्रमाण था, प्रत्यक्ष था, उपमान था, अनुमान था, वो कहते हैं आप इसका प्रूफ लो आपकी किस व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। तो सर एज ए स्टूडेंट मेरा ये डाउट है कि मैं इन चीज़ों को कैसे आगे लेकर के चलूँ, पढ़ाई में भी और उनको जवाब देने में। मुझे लगता है ये संघर्ष है आपका, हम सब लोग उस संघर्ष में शामिल हैं। हमसे भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और हम उसका जवाब देते हैं। जैसे उदाहरण में देता हूँ सिर्फ आपको, एक किताब है हिंदुस्तान में जिसका नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ बहुत ही पावरफुल किताब है, सिविलाइजेशन का, ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पावरफुल किताबों में से एक है। और इसका अध्ययन और अध्यापन मुग़ल बादशाह अपने बच्चों को करवाते थे, और इसका ट्रांसलेशन मुग़ल बादशाहों ने किया। 3 मुग़ल बादशाहों ने इसका ट्रांसलेशन किया पर्शियन में।
ये इतना पावरफुल किताब है। लेकिन अभी आप उसको पढ़ेंगे तो कहेगा इसमें ये इरेशनल चीज़ें हैं। तो शायद हमारा दृष्टिकोण जो पढ़ने का है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने आकर बाहर से हमारे ग्रंथों को पढ़ के किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालत हो गई थी इन ग्रंथों की, हमने उसको एबेंडन कर दिया था, बल्कि उन ग्रंथों के मिस इंटरप्रिटेशन से हम सती प्रथा तक पहुँच गए थे। तो ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसको कहते हैं, एक वर्ड है बड़ा अच्छा इसके लिए, ट्रांसक्रिटिक। एक जापानीज़ फिलोसोफर है कोजिन कारातानी, वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि जब कभी आपको बाहर से कोई देखता है तो आपके अंदर का कॉन्ट्राडिक्शन बेहतर दिखता है, इसलिए उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। कभी कभी आपको ही अपने अंदर से बाहर निकल के अपने आप को देखना चाहिए, जिसको साक्षी भाव कहा जाता है। तो उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है वो समझ में आपको आने लगेगा। तो वो जो पश्चिम का यहाँ आना एक तरह से अच्छा ये था कि उन्होंने हमारे सबसे कमज़ोर चीज़ों को उजागर कर दिया। तो उसे घबराने की जगह हमें लगता है दोबारा से इसे एंगेज करने की ज़रूरत है, और ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है जिस पे आपको चलना पड़ेगा साथ में। जी। Question is related to what is the significance of political theory in India actually, because we have been reading all this political philosophy. But to today's context, how do we relate this to theory within India? Is there any kind of relevance we can bring in, or is this only reiterating the earlier philosophy which is being there and we are just repeating them? You mean the Western philosophy? That has been my question to my friend Gurpreet Mahajan, that what have you been doing? Are you teaching history of philosophy, history of theory, or it has some relevance for us? I'm sure there is a lot of relevance, because we, being a theory building being, we appropriate those theories to make our policies. So if you go into the public policy, you will find that most of the public policies are guided by right or wrong theory. That is there. But of course, when we are teaching, and Professor Mahajan kind of acknowledged this thing now. She said that I want to write something on teaching political theory itself. I don't think that we have been teaching political theory very well in India. So Indian intellectuals are recognizing that what we are teaching in the name of theory is not training human mind in theorizing. We are only giving them history of theory. We are assuming that this training will train their mind in thinking in a way that they can theorize. Like suppose you are engaging with a very complicated argument by Hegel. So that complicated argument will train you, as mathematics trains your mind, in thinking. So you will emerge as a thinker once you are trained in these things. He gives a very interesting example. He says that theory learning is like learning music. You cannot create any new music unless you are very well deeply trained in music tradition. So therefore probably teaching the tradition trains your mind in thinking. That relevance is definitely there. But my problem with this kind of formulation is only one thing, that it treats theory as a very elitist thing. Like classical music, all of us, we can't sing, but we have right to sing, isn't it? I mean, singing gives us enjoyment, so we would love to sing. So therefore that right we should have. And then it is duty of the classical singers to look some talent within me and train me in singing if it's possible. But I should not be debarred from thinking. Thinking is my prerogative. Thinking theoretically is my prerogative. So instead of creating fear towards theory, we should create confidence in being a theoretician, isn't it? Thank you. There are more questions? You want to take more questions? Yeah, please. सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम एंशिएंट और मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं तो उसमें हमें रिलीजन की बहुत ज़्यादा इनएक्सप्लिकेबल इंटरवेन दिखती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरवाइंड है, चाहे हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लें या फिर मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आ जाए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम थियोराइजिंग माय वे के हिसाब से चलते हैं तो वो मॉडर्न स्टेट के अपरेटिस में, जैसे आपने अभी कहा कि अर्थशास्त्र के हिसाब से मॉडर्न स्टेट नहीं चला सकते, तो वो जो विजडम है वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाती है।
तो और अगर हम उसको मतलब काइंड ऑफ अगर हम उसको इम्प्लीमेंट हम उसे कर नहीं सकते हैं, और अगर हम उससे एक पॉलिटिकल थॉट ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं उसके रिलीजियस एलिमेंट को वो हटा के, तो वो कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क में जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क है, जो पॉलिटिकल थॉट का फ्रेमवर्क है, जो ये कहता है कि पॉलिटिकल थॉट जो है वो वेस्ट में है और इंडिया में नहीं था, तो वो उस फ्रेमवर्क में हम अपनी विजडम को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो सर इस पर आप। बहुत बढ़िया सवाल है। दो बातें। पहली बात तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ का रिलीजन के साथ कनेक्ट होना ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए कि रिलीजन भी एक तरह का नॉलेज सिस्टम है। ह्यूमन बीइंग्स के पास हज़ारों साल तक अपने ज्ञान को संकलित करने का जो लैंग्वेज था, जो टेक्निक था, वो रिलीजन ही था। तो हमारा जो ज्ञान है मेडिसिन के बारे में, हमारा ज्ञान है तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नंबर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सारा ज्ञान तो जो संकलित है मॉडर्निटी के आने के पहले तक, वो सब रिलीजन में संकलित है। इसीलिए रिलीजन के साथ किसी चीज़ का कनेक्ट होना कोई गलत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र खास करके उसका तो रिलीजन एज सच से कोई रिलेशन नहीं है। यदि रिलीजन का मतलब ये मानते हैं कि गॉड और रिचुअल और तमाम चीज़ों से इसका खास रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यदि है भी किसी टेक्स्ट का यदि रिलेशनशिप है भी, तो मुझे लगता है जो प्रक्रिया वेस्ट में चली है वो अच्छी प्रक्रिया थी कि उन्होंने एक समय में आके रिलीजन से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक सेकुलर डोमेन में लाया। उदाहरण के लिए जो उनका थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, hermeneutics जिसको कहते हैं, वो पूरा क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का टेक्निक था जिसे उन्होंने बाहर निकाला। हमारे यहाँ भी वो टेक्निक है, मीमांसा जो है वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। एक केरल सरकार हुआ करते थे, 1905 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड लेक्चर दिया और वो लेक्चर बड़ा अच्छा है, करीब 30-40 पेज में उन्होंने लिखा है कि कैसे मीमांसा थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एनीथिंग। तो ये जो ज्ञान वहाँ संकलित है, उस ज्ञान को निकाल के आधुनिक समय में उस ज्ञान का क्या हमें उपयोग हो सकता है, ये काम तो हमारे लिए करना भी बाकी है। दिक्कत क्या है, जब जैसे हम उसे रिलीजियस कहते हैं फिर उसे हम कहते हैं ये नहीं, इसको बाहर निकालो, ये रिलीजियस है, इसको बाहर निकालो। वो मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम है। और इसका एक नतीजा क्या होता है कि लोग अपना जीवन उसी से चलाते हैं। यूनिवर्सिटी के लोग उससे अपना जीवन नहीं चला रहे हैं, लेकिन आम लोग अपना जीवन उसी से चला रहे हैं। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसलिए मैं मजाक में कहता हूँ कि लोग सेकुलरिज्म पे किताबें लिखते रह गए और आम आदमी कम्युनल होता चला गया। कोई कनेक्शन ही नहीं बना दोनों के बीच में। जो ज्ञान हम सृजन कर रहे हैं, इस ज्ञान का आम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये डिस्कनेक्ट जो है, ये डिस्कनेक्ट इसलिए भी है कि हमने जिस ज्ञान से उनका जीवन चल रहा है उस ज्ञान को इरेलीवेंट मान लिया। यदि उसको ज्ञान माने तो फिर ज्ञान मानने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसे एंगेज करेंगे, क्रिटिक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे उसके साथ, छोड़ के अलग नहीं हट जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, जब आप ये बोलते हैं कि वेस्ट ने हमें हमारे इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं मिथिकल बता दिया, और जब कॉग्निटिव डिसोसिएशन जो हम करते हैं उसके अंतर्गत हम कहीं ना कहीं शेमफुल फील करने लगते हैं अपने ही पास्ट, अपनी ट्रेडिशंस के। सर, ये मेरा पर्सनल डिलेमा ये है, सबसे बड़ा डायकोटमी इज बिटवीन द वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी एंड हाउ डू वी एक्चुअली डू जस्टिस टू जेंडर इक्वेशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्योंकि अब इसमें आप बोल रहे थे एरिस्टोटल्स ओपिनियन ऑन वुमेन शुड नॉट बी जज्ड और शुड नॉट बी बिकम अ बेसिस ऑफ रिजेक्टिंग हिम। कहीं ना कहीं एरिस्टोटल को आई कैन पर्सनली इग्नोर, बट to ignore Manusmriti becomes very difficult. So that is how do I go ahead in context of theorizing feminism in Indian traditions? नहीं, मुझे लगता है कि चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो, जितना भी टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ है दुनिया में, वो सब पावर रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस हुआ है। ये उम्मीद करना कि वो टेक्स्ट भगवान ने लिख दिया जो पावर रिलेशन में नहीं है, इवन जो जिसको भगवान के बारे में क्लेम करते हैं वो भी पावर रिलेशन का टेक्स्ट है।
लेकिन इसी पावर रिलेशन के बीच में नॉलेज भी प्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें से क्या नॉलेज है, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, इसके साथ एंगेज करना ज़्यादा बेहतर है बनस्पत इसके किसी टेक्स्ट को हम रिजेक्ट कर दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे जितनी फ्रेंड्स हैं जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं और इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए बड़ा डिलेमा है क्या। और मैं उनसे क्या, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ एक बात कि हमें महादेवी वर्मा को सीरियसली पढ़ना चाहिए। उनकी जो कुछ किताबें छोटी छोटी हैं, उसका नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। वो इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास करती है। और इंडियन फेमिनिस्ट की समस्या ये है कि वो उस रिसोर्स से एंगेज नहीं करती हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है ना कि हम अपने जो रिसोर्सेस हम ढूंढते हैं थ्योराइज करने के लिए, वो अपने संदर्भ से ढूंढते ही नहीं हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यदि कोई लिटरेचर ना पढ़े तो मेरे क्लास में ना बैठे, क्योंकि वही एक तरीका है ना अपने लोगों से जुड़ने का। आप तो फील्ड पे जा नहीं रहे हैं, लिटरेचर ही एक तरीका है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ख़ास करके हिंदुस्तान में जहाँ सोशल साइंस की परंपरा नहीं थी फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान, तो जितना भी संघर्ष चला, जो भी चर्निंग चला, वो कहाँ डॉक्यूमेंट हुआ? वो तो वर्नाकुलर लिटरेचर में डॉक्यूमेंट हुआ ना सब जगह। उससे यदि हम एंगेज ही नहीं करेंगे तो कैसे पता। यहाँ तक कि अभी का जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, मेरा एक लेख है जिसमें मैंने 3 नॉवेल्स को एनालाइज किया है, हिंदी के 3 नॉवेल्स को। वो इतना अच्छे से हमें बता रहा है कि क्या समाज में परिवर्तन हो रहा है, सोशल साइंटिस्ट उसे पकड़ नहीं पा रहा है। वैसे ही फेमिनिस्ट लिटरेचर मुझे लगता है, जैसे आप यदि टैगोर की किताब पढ़ें नौका डूबी, आप चित्तकोबरा पढ़ें, मन्नू भंडारी की नहीं है, किसकी है ये, आई फॉरगेट द नेम, या आप अमृता प्रीतम को पढ़ें, तो आप देखेंगे पूरा संघर्ष उसके अंदर चल रहा है जिसमें वो अलग तरीके से आर्टिकुलेट कर रही हैं। दे आर नॉट एक्सपोज टू वेस्टर्न फेमिनिज्म, येट दे आर आर्टिकुलेटिंग वेरी डिफरेंटली। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा रिसोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने अपने रिसोर्सेज से कभी एंगेज ही नहीं किया है। और ख़ास करके जो लिटरेरी रिसोर्स है उससे तो कभी हमने एंगेज ही नहीं किया है। ये बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि है, शायद वहाँ कुछ सोल्यूशन आपको मिल सके इसके बारे में। थैंक यू।